Good morning, friends. Uh, in the previous lecture, we have considered our film theory, and so in the film theory, mainly we have discussed that there is a stagnant film near the gas-liquid interface, and the concentration profile through the stagnant film is linear as respect to the film theory, or as the described by the film theory. But film theory is restricted to the steady-state process mainly, where the two laminar films are formed. In 1935, one of the research scholars is called Higby. He presented his theory as the Higby's penetration theory for the unsteady state processes. Actually, most of the industrial processes of the mass transfer or the heat transfer or any other thing are the unsteady process. In such cases, the contact time between the phases is too short to achieve a stationary state. And this non-stationary state phenomena is generally not taken into account by the film model, because film model have a restriction that it deals with the steady state or the stationary phenomena in the laminar layer. So like in the absorption of gases from the bubble or absorption by the wetted wall columns, the mass transfer surface is formed instantaneously and transient diffusion of the material take place. Means the figure which are showing here like this is the representation of a uh, rising of a gas bubble in a liquid, and the liquid particle are sliding down over the this bubble. The Higby's penetration theory has the three major assumption. Which one is that the unsteady state mass transfer occur to a liquid element so long it is in contact with the bubble or the other phase. Like आपको जो फिगर दिखाई दे रही है, इस फिगर के अंदर जितने टाइम के लिए थीटा हमारे पास इसके कांटेक्ट में रहेंगे उतने हमारे पास मास ट्रांसफर होगा अनस्टेडी स्टेट में. अनदर थिंग कि दैट द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट द गैस लिक्विड इंटरफेस. इस बबल में जहाँ जहाँ लिक्विड का जो एलिमेंट्स जो हमारे पास कांटेक्ट में रहेंगे तो जो वो इंटरफेस बनेगा उस पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा. एंड द थर्ड वन इज द each of the liquid elements stay in the contact with the gas for the some period of time. That is more important that Higby's penetration theory give more weightage to the period of the time theta for which the liquid element is in contact with the gas. That is very main part of this Higby's penetration theory. So in Higby's penetration theory, we use the unsteady state mass balance equations over here, and after applying the mass transfer equations of unsteady state mass transfer equation, we have get this kind of partial differential equation of the multiple variable, like dc equal to dc by del c by del t equal to dab del square c by del z square. बेसिकली द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स की जब हमारे पास जनरेट होती हैं, तो मैं पहले भी इस चीज़ को आपको तो बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि जब मल्टीपल वेरिएबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं तब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है. द फर्स्ट मेथड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल. इस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल में हम लोग कुछ नॉन डायमेंशनल टर्म्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन नॉन डायमेंशनल टर्म फॉर्म को हम लोग बनाते हैं और उससे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एंड द थर्ड मेथड इज द मेथड ऑफ साइनसोइडल रेस्पॉन्स. सो दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड by the method of combination of variable and have the standard solution like CAI minus C upon CAI minus CAB equal to error function capital Z upon 2 DAP by T. Actually this is a standard equation. एक्चुअली जो आपका ओल्ड सिलेबस था ट्रांसपोर्ट फिनोमिना का, उसके अंदर अनस्टेडी स्टेट प्रोसेसेस को काउंट किया जाता था, तो उसमें शेल वेलोसिटी के लिए भी और टेम्परेचर के लिए भी एंड कंसंट्रेशन के लिए भी हम लोग ये फाइंड आउट करते थे एरर फंक्शन के थ्रू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया करते थे. अभी आपके सिलेबस में जब ये चीज़ नहीं है तो यू हैव टू
memorize this question, this solution, that CAI minus C equal to CI minus CB equal to error function capital Z upon 2 DAB by T. Now what is this error function? Error function error function is defined as this relation ER x equal to 1 upon 2 upon under root by 0 to exponential of minus z square upon dz. जनरली जब हम लोग इक्वेशंस को जब हम मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल से सॉल्व करते हैं तो हम लोग उसके अंदर मींस मान लीजिए हमने थीटा या ईटा के नाम से एक हमने कुछ टर्म्स जनरेट कर लिए हैं नॉन डायमेंशनल नंबर्स की, तो ये जो z यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, तो वो जो आपने मल्टीपल वेरिएबल जो आपने या जो जो नॉन डायमेंशनल नंबर जो आपने चूज़ किया है ये उसकी जगह z होगा। तो ये जनरल रिलेशन हमारे पास है कि एरर फंक्शन x इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट पाई 0 to x exponential minus z square dz. If you are choosing the non-dimensional number is represented by eta, then it is 2 upon under root by 0 to x exponential minus eta square del eta. This is the main theory philosophy behind this error function. So this is the standard solution of some kind of the differential equation. मैं और डिटेल में आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझा देता हूँ कि हमारे पास जब हम मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कर रहे होते हैं तो हमारे मेथड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल से होता क्या है कि हम एक नॉन डायमेंशनल नंबर चूज़ करते हैं और जो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो मल्टीपल वेरिएबल है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल में जो हमने वेरिएबल चूज़ किया, मान लीजिए ईटा हम लोगों ने चूज़ किया है, तो उसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीपल ऑर्डर मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर भी हो सकती है, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरली वो कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है और उसका हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है दैट इज एरर फंक्शन इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट पाई 0 to x एक्सपोनेंशियल माइनस z स्क्वायर अपॉन dz। आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है ये बर्ड एंड स्टुअर्ट, आप बर्ड एंड स्टुअर्ट के अंदर आप अपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ भी सकते हैं। अनस्टेडी स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस जो हमारे पास हैं जिसमें वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अलग चैप्टर है, टेम्परेचर के लिए अलग चैप्टर है एंड द मास के लिए अलग चैप्टर है, तो वहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है इस चीज़ को कि हमारे पास ये एरर फंक्शन क्या है और किस तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल वर्क करते हैं। सो रेफरेंस के लिए हमारे पास आप वो ले लीजिए। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है इस चीज़ का तो हम लोगों ने वो वैल्यू कहाँ रखी, फ्लक्स में रख ली है। तो कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन आया तो उसको हमने फ्लक्स में रख लिया डेल सी बाई डेल जेड की वैल्यू को और हमारे पास वैल्यू जनरेट हो गई है एन ए टी इक्वल टू रो डी ए बी बाई पी टी अंडर रूट सी ए आई माइनस सी ए बी। एक बात यहाँ पे मैं आपको नोट कर लूँ इस चीज़ के लिए कि सिर्फ जो हमने अभी टू फिल्म थ्योरी करी थी या फिल्म थ्योरी हमने इससे पहले पढ़ी थी और अभी हमने यहाँ पे हिग्बीज पेनिट्रेशन थ्योरी पढ़ रही है जिसके अंदर हमारे पास क्या है अनस्टेडी स्टेट प्रोसेसेस को डिफाइन करते हैं। थीटा टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और वो कहते हैं कि हाँ कि हर लिक्विड एलिमेंट जो है वो गैस के कॉन्टैक्ट में आता है और जितने टाइम की ड्यूरेशन के लिए लेता है वो टाइम टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जिसके बेसिस पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हुई है। और उसके बाद हमारे पास कि जो ये टाइम के साथ साथ जो एलिमेंट हमारे पास कांटेक्ट में आया है उसका जो इंटरफेस है उस पर हमारे पास इक्विलिब्रियम भी रहेगा। तो उसमें हमारे पास जो फ्लक्स की इक्वेशन आई है ये अंडर रूट डी ए बी की प्रोपोर्शनल है, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ द डिफ्यूजिबिलिटी। और यही एक मेन डिफरेंस आ जाता है स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट के बीच में, क्योंकि फिल्म मॉडल जो हमारे पास टू फिल्म मॉडल था उसके अंदर हमारे पास अगर फ्लक्स को आप देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजिविटी के, और यहाँ पे हिग्बीज पेनिट्रेशन थ्योरी के अंदर अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस के अंदर जो फ्लक्स है वो डिफ्यूजिविटी के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल आता है। तो ये आप मेन डिफरेंस है हमारे पास इस चीज़ के लिए। तो काइंडली गो थ्रू इट फॉर द हिग्बीज पेनिट्रेशन थ्योरी। हाउएवर यू ऑल आर आपने ये पूरी थ्योरीज मास ट्रांसफर में अपने पास पढ़ रखी है, मैं सिर्फ यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा और एलैबोरेट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आई एम हियर फॉर हेल्प। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।